Go ahead. Yeah. So hi, how are you? Very good. How are you? I am good, and congratulations. Film is looking very interesting. See, we Thank are you. currently waiting for it. Now, So let's just hope that now yeah. it gets a good release and Hmm. take to it and find themselves with each character that is there in the film. It's a beautiful film. Yeah. It's Actually, we have never heard the name actually Gunjan Saxena before this film comes. तो कैसे हुआ मतलब प्रिपरेशन एंड ऑल एंड आप जानवी के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म में तो how is your character देखिए, or yeah just tell us. it's a story of a family. It's a story of Gunjan and Anshuman Saxena. Anshuman Hmm. Saxena उनके पिता हैं पंकज त्रिपाठी जी and I play Anshuman Saxena and their mother is Aisha ma'am is playing it, the mother, and I think this is a story set in Lucknow में set है एक छोटे शहर की कहानी है और कैसे ये शहर की सोच और शहर को भी दिखाता है and I feel that इस कहानी में एक लड़की है उसका नाम गुंजन है और कैसे उसके सपने हैं कि वो एक प्लेन उड़ाना चाहती है और कैसे Your voice is cracking on that. इट्स लाइक कभी क्या होता है कि जिंदगी आपको मेरी आवाज आ रही Yeah, yeah, सो now, इट्स now. तो इट्स अ स्टोरी ऑफ दैट ऑफ गुंजन इट्स अ स्टोरी सक्सेना हु इज एन आर्मी ऑफिसर गुंजन सक्सेना इज एन एयर फोर्स ऑफिसर और कैसे एक पिता है हमारे जो हमेशा जो भले गुंजन के सपने हो या अंशुमन के सपने हो दे ही इज ऑलवेज फॉर देम एंड ही इज ऑलवेज वांटिंग टू पुश देम बट when it comes to Gunjan, he wants her to live her dreams, and but he doesn't. What he does is he shows her all the positives, and the brother Anshuman Saxena is the man who shows her the mirror of the society. A realistic person. He's an army officer. He's young. He's 19 years old, and he tells his sister that उसको लगता है कि उसकी बहन ने एक जिद पकड़ के रखी कि उसको पायलट बनना है, बट पायलट की जगह वो एयरफोर्स जाती है लेकिन फिर भी he wants to tell her and make her understand that what goes behind in being a responsible officer for the country, what goes behind in being मेहनत कितनी लगती है, संकल्प कितना होता है, you're trying to make और ये कहानी जो है 90s में सेट है तो it also showcases the chauvinism of that 90s का era in a small town and how it will be for her who wants to set foot in a man's world and find her place. Anshuman loves his sister. He wants to look after Gunjan. He also believes in her talent. But he wants her to understand कि सिर्फ हुनर और काबिलियत ही काफी नहीं है. You have to be mentally and very strong to take on the people, especially the men who you're going to threaten, going to challenge. And it is that journey. It is the mirror of the society which Anshuman shows her, and he is the voice of reason. The picture में जो है इसमें heroism नहीं है इतना. It is about the fact it is the coming of it's the journey of Gunjan, but it is the coming of age of Anshuman. कैसे उसको लगता है हमेशा वो ही अपनी बहन की रक्षा कर सकता है. भाई है तो वो अपनी बहन की रक्षा करेगा. लेकिन how he comes to understand that it is not just that he can protect his sister. अगर मौका मिले तो उसकी जो बहन है वो भी उसकी रक्षा कर सकती है. So it's a great emotional graph. It's a beautiful story. And हम लोगों ने अगर आप लुक की भी बात करें जो लुक आई है बाहर 3 पोस्टर्स आए हैं, एक जानवी का आया है, एक मेरा आया है, एक पंकज जी का आया है. और अगर आप लुक देखें ऐसी कभी जो लुक है I have never been presented like that, so I'm very excited क्योंकि लुक को काफी प्रशंसा मिली, लोगों को काफी अच्छी लगी. It's a young look. I play a 19-year-old boy. बिल्कुल आर्मी वाला crew cut है, clean shaven है. ऐसे मैं कभी स्क्रीन पर नहीं आया. So interesting है. There is a certain good anticipation regarding my look, and I'm very very glad and happy. क्या होता है अगर एक तरह लोग आपकी लुक पसंद कर ले तो आपका काफी काम बन जाता है. That means you're looking the part. तो पहला तो एक्टर के ज़हन में एक स्ट्रेस होता है कि यार am I looking the part? Then am I behaving the part? Am I feeling the part? So
वो सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. अब अगर जब टेस्ट मैंने पास कर दिया तो आई फील दैट नाउ द ऑडियंस हैज टू डिसाइड. द ऑडियंस इज एंड दे विल डिसाइड कि मैंने काम कैसा किया है. I like such characters because क्या होता है कहीं ना कहीं you are the reason to the journey, and I feel and if the reason only changes during the journey, सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? Character arc, तो मेरा कैरेक्टर आर्क एज अंशुमन सक्सेना मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी. और जब हम डिसाइड आइडिएट कर रहे थे, इसका जो पूरा श्रेय है वो हमारे डायरेक्टर शरण शर्मा को जाता है कि पहले तो उन्होंने ऐसी कहानी सोची और सुनी, उन्होंने डिस्कवर करी, उन्होंने लिखवाई, और फिर जब कास्टिंग की बारी आई, जानवी वाज द परफेक्ट फिट बिकॉज जानवी में एक बहुत अच्छा इनोसेंस है, एक वल्नरेबिलिटी है जो किरदार के लिए बहुत जरूरी है. And I feel that when I was cast, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी casting हो रही है. And I was not told. Karan sir had come and seen सूरमा, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया था. And I think वहाँ से मेरी बात उन्होंने he spoke about me in Dharma, and थोड़ा एक रुचि बनी थी. And शशांक खेतान जो है, जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के निर्देशक हैं धर्मा में और प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनके साथ मैंने 3-4 फिल्मों के लिए टेस्ट किया था, तो उनको मेरी काबिलियत पर बहुत विश्वास. तो वो जिस दिन मैं धर्मा के ऑफिस गया, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं वहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही गया क्योंकि वहाँ पर हमें बुलाया था कि एक और पिक्चर थी, उसकी स्क्रीनिंग थी, तो हमें देखने के लिए बुलाया था. और वहाँ शशांक खेतान ने मुझे शरण शर्मा से मिलाया, मेरा हाथ पकड़ के, और वहीं से आई थिंक मेरी और शरण की जर्नी शुरू हो गई. और अगले दिन मुझे फोन आया कि please come in for an official meeting for Gunjan Saxena with Sharan Sharma, and that meeting lasted 5.5 hours. So wahi I think Sharan had decided that we will collaborate, and I'm very very glad and fortunate that Karan sir agreed to that and he gave me that opportunity. और हालांकि करण सर को पहले से ही लग रहा था कि I should be part of it because my DNA fits the character, but he me through the right channel. He made Sharan called me, and then we met up for a meeting, and then he inquired about me through Sharan when he could have done it directly, which he did. And I really appreciate that. I went from a channel where the filmmaker wanted me, and so the producer backed me. And I think that is the best for any actor to move forward. And और इस पिक्चर में हम लोग जब लुक की भी बात कर रहे थे, तो एक ना शरण wanted my character to be inspired by Rocky. Sylvester Stallone की फिल्म आई थी Rocky 1, जो पहली Rocky आई थी, उसकी जो लुक थी, Sharan wanted me to have long hair, clean shaven, and then cut the hair when he goes into the army. लेकिन वो क्या हो रहा था, वो अचानक से एक लुक Rocky, वो लंबे बाल वाली आ रही थी, और फिर वो शिफ्ट हो रही थी टू एन आर्मी मैन्स लुक, तो वो थोड़ा जारिंग लग रहा था. So Sharan said लंबे बाल नहीं रखेंगे, छोटे में ही रखते हैं, लेट्स कीप हिम क्लीन, लेट्स कीप हिम करेक्ट, लेट्स कीप हिम अर्नेस्ट एंड रियल, क्योंकि लखनऊ का लड़का है. तो अगर लंबे बाल अगर मैं रख दूंगा तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ी केयरलेसनेस आ जाती है, एंड आई फील दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि जो डीएनए कैरेक्टर का जो स्क्रीन प्ले पे लिखा जाता है, उसी डीएनए के साथ अगर कोई भी एक्टर उस किरदार को प्ले करने के लिए आता है, तो वो डीएनए उस एक्टर का भी बन जाना चाहिए. जो भी अगर आप लुक भी देखेंगे जो रिलीज करी है धर्मा ने पोस्टर्स पर या नेटफ्लिक्स ने, हर कोई अपने किरदार में है, कोई हीरो नहीं लग रहा या कोई हीरोइन नहीं लग रहा. they are looking like very real people. I feel that I'm very fortunate. I got a lovely opportunity to play Anshuman Saxena, to be part of such a beautiful film, to work with Dharma again. मैंने एक और पिक्चर करी थी उनके साथ, उंगली, जो रेंसिल सिल्वा ने बनाई थी. Karan and Apurva Mehta sir and Dharma only produced it. और अब मुझे वापस से एक मौका मिला है with Gunjan, and I hope this association carries forward because it's really good to see when producers start believing in your talent. I've done a body of work. I've had films like Pink, Surma, Tiger Zinda Hai, and now Gunjan, and also Inside Edge. In my filmography, and I feel that I worked with producers like Excel, YRF, Dharma twice over, Excel twice over with season 1 and season 2 of Inside Edge. So it gives other people a certain
कॉन्फिडेंस की हाँ अगर इन लोगों ने इसके साथ काम किया तो अब अंगद को हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यू नो इवेंचुअली तो ये जो एक्सरसाइज है ऑफ यू नो बिल्डिंग योर फिल्मोग्राफी एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये तो ट्रस्ट पर ही बिल्ड होती है. यू नो आई थिंक फॉर मी जो फेथ लोगों ने मेरे में दिखाया अभी तक, my heart is full of gratitude to that one person, is Shujit Sarkar. Because Shujit दा ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी थी पिंक. उन्होंने मुझे मिस्टर बच्चन के सामने खड़ा किया था एज राजवीर सिंह, एंड यू नो आई थिंक वहीं से सब कुछ बदल गया. अगर मिस्टर बच्चन उस फिल्म में ना होते तो शायद मैं आज गुंजन सक्सेना ना कर पाता, वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज जब आप मिस्टर बच्चन खड़े हो जाते हैं तो ऑल ऑफ सडन ना इंडस्ट्री आपको देखती है, एंड शुजीत दा गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक दैट मेरी जर्नी 2016 से शुरू हुई है फ्रॉम देयर टिल अभी तक गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल. आपने बताया कि आपका ये पहला ऐसा किरदार है जब आप आर्मी मैन का रोल प्ले करने जा रहे हैं. जब भी वो ड्रेस पहनते हैं तो एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है अंदर. कैसा लगता है, मतलब एक प्राउड फील होता है कि जब आर्मी मैन ऐसे. बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो मेरी पैदाइश एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में हुई, तो क्या होता है स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं और जो जवान होते हैं उनका जो बिहेवियर पैटर्न, एक तो डिसिप्लिन होता है, एक डेडिकेशन होता है, एक कंट्री के लिए अपने देश के लिए करने का एक जज्बा होता है कि पुट कंट्री बिफोर सेल्फ. सो आई फील दैट वो लकीली वो मेरे जहन में है थ्रू. मेरे पिताजी हिंदुस्तान के लिए खेले थे क्रिकेट 16 साल के लिए, और उस वजह से मैं उनके अंडर ट्रेनिंग में रहा हूँ. मैंने परिश्रम करा है, बहुत मेहनत लगाई है, सो दैट यू नो I could instill that discipline in myself, and I feel I've carried forward that learning जो सीखा मुझे मेरे पिताजी से मिली है through sport, through cricket, how to you know what is that feeling, what is that joy of representing your country, you know it's literally like taking a bullet जो on you know for your country, और you know वो passion के साथ वो मुझे passion समझ आता है, and I feel that cricket field पे नहीं तो मुझे यहाँ as a जवान अगर मौका मिला है as a real life jawan, not a real मुझे पता है real life jawans तो you know they live a completely different life. They are literally like you know gladiators who are standing and guarding the front of our country. But I feel that मौका मिला है, and I've tried to do it as honestly and as earnestly as I could have. And I'm very glad क्योंकि हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि वो कभी ना कभी देश के लिए यूनिफॉर्म पहने, you know, and I've been given that opportunity here, and you know my heart was so full when I wore that uniform, because अचानक से आपकी spine सीधी हो जाती, you feel proud, you feel confident, you feel like an officer, and I can't, and I'm sure actors who have worn uniform will understand what I'm saying right now, because it is the most proud feeling in the world to represent your country. It comes naturally in you, मतलब it comes naturally. Because the thing is that see, आज I've done a film called Surma जो एक बायोपिक थी on संदीप सिंह, दो भाई की कहानी थी, विक्रमजीत सिंह जो बड़े भाई थे, उनका sacrifice था towards the journey of संदीप सिंह. Here I'm playing गुंजन सक्सेना, अंशुमन सक्सेना, to you know गुंजन सक्सेना. I feel that जब आप real ऐसे stories में काम करते हैं जो बायोपिक्स होती हैं या जो किसी एक इंसान पर आधारित होती हैं, तो जब आप उनकी जर्नी जीते हैं तो आपको समझ आता है कि इनका स्ट्रगल, इनकी सैक्रिफाइस, यू नो इनकी सोच, इनकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कैसा है. लाइक आज के दौर में हमारे पास यू नो सानिया है, दीपिका पाडुकोण है, हमारे पास यू नो एंड सानिया नेहवाल है, दूती चंद है, you know there's been PT Usha back in the day, and I feel that the names you know which have brought so much of glory to our country, and I feel today's जो दौर है, it is the time of the woman, and you know the women are making this country proud, the women are taking this country forward, and I feel that gives me immense pleasure in my you know gives me immense like a feeling of being so proud, because the thing is that today I also have you know, and you know tomorrow I also want her to and do something for the country, you know, because क्या हो जाता है कि जब मैं छोटा था तो एक टाइम था जब पेरेंट्स, my father wanted to put me in the army first, you know, and my mother was not willing. She said नहीं, मेरा बेटा आर्मी मैन नहीं बनेगा, and I felt like you know
I wish my father had not listened to my mother and put me in there. क्योंकि discipline हो जाता है. But nevertheless, I still had that discipline because of sport. कि मैं under 16, under 19 खेला, मैं cricket खेला, 7 साल खेला, और मैंने जी भर के मेहनत करी. You know, if अगर punishment मिलती थी, my father used to punish me first so that he can set an example to the rest of the kids. So I've been through that journey, and I feel that, you know, that gives you a certain solid base, and it gives you that confidence that, you know, you can take on life head, like, you know, you can be fearless and go and face any difficulties, because life will throw many difficulties at you. You will face, there will be challenges, there will be obstacles, but अगर आपको अपने हुनर में विश्वास है ना, तो आपको कोई हिला नहीं सकता. So I feel that that is what is important. गुंजन में भी वही बात है. अगर आपको अपने हुनर में विश्वास है, तो आपके सामने कोई भी कठिनाई या मुश्किल आए, आप खड़े उतरोगे, you know. And भले it's like अगर घर में भी अगर अंजुमन सक्सेना गुंजन को बता रहा है कि ये मसले होंगी, ये दिक्कतें होंगी, जाना जरूरी नहीं है, भी घर वापस आ जाओ, लेकिन फिर भी गुंजन अटल रहती कि नहीं, अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई नहीं कर पाएगा, और यही टाइम है अगर मैंने कर ले तो, you know. And how Anshuman understands his sister and her emotion, and how he stands up with her, you know, and he looks up to her, and I feel that that is the beauty of the film. You know, the changeover is the beauty of the film. Like you've played so many characters, negative, positive, everything you've played. You've done so many roles with big banners. आपका कोई दिल के करीब ऐसा रोल हो और आपने सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया, नेगेटिव कैरेक्टर्स और पॉजिटिव? देखिए, मैंने एक नेगेटिव भी नहीं, वो ग्रे एरिया में था, राजवीर सिंह. इट वाज वो हालाती कैरेक्टर था. अभी तक मैंने नेगेटिव प्ले नहीं किया है, बट आई फील दैट जो अभी जैसे मैं इसके बाद एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आई एम प्लेइंग, यू नो, पुलिस ऑफिसर. तो उसमें इट्स द जर्नी, द राइज ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड काउंटर स्पेशलिस्ट. बहुत अच्छी स्टोरी है और 18 दिन हो चुके हैं. बट आई फील, you know, I would love to do a film on, जैसे मुझे थोड़े बहुत कैरेक्टर्स बहुत पसंदीदा रियल लाइफ के लगते हैं. अगर उनकी जर्नी मुझे मिले, I would love to portray, you know, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है. आई फील ग्राफ कैरेक्टर का अच्छा होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट आर्क होगा तो मजा आता है. You know, like I loved the fact that the way Mr. Bachchan portrayed in सरकार में वो कैसे थे, you know, like how he portrayed that image of Sarkar. You know, for me, Amir sir in Lagan as Bhuvan, you know, I thought he was fabulous. And Lagan एक ऐसी पिक्चर है जो मैं बार-बार देख सकता हूँ. मुझे दिलजीत का काम सूरमा में as संदीप सिंह बहुत भाया था. You know, I connected with that part. I believed in him as an audience, and he was fabulous. Same way with Farhan Akhtar in Bhag Milkha Bhag. So I feel that these are the kind of films I wish, if I'm given an opportunity, I would love to be part of them. And मुझे भी अगर given, you know, if somebody shoulders me with the responsibility of projecting a person's life which made a difference to the country, I would love to do something like that. You know, I feel that there is no bigger glory than representing a character who's brought so much of glory to your own country. So I feel that मौका मिलेगा, you know, I think I'm very close. I can feel it. Something will come my way, and given an opportunity, I would love to do something. And then my last question is to you कि 2020 को आप कैसे देखते हैं? बहुत सैड ईयर है बॉलीवुड के मामले में हो, चाहे पैंडेमिक चल रहा है उसके मामले में हो. कैसे देखते हैं आप? आप कैसा फील करते हैं इस ईयर को लेके? देखिए, जो साल 2020 has been, it's been a very challenging year. हमको बहुत कुछ सिखाकर भी गया है, सिखा रहा है नहीं. तो you know, I feel the worst is behind us. ये pandemic ने, you know, has caused, despite causing a lot of damage, there is a reason for all this. If you know, look slightly in a deeper way, as human beings we've been very selfish. You know, हमने मदर अर्थ को काफी abuse किया है, गंदगी फैला के, we've kept, you know, overpopulated करके, you know, we've not cared for the environment. You know, अगर हम इसका थोड़ा ध्यान रखते और, you know, अपने घर को साफ रखने के बजाय अपने वातावरण को साफ रखते और घर के साथ अपने वातावरण को साफ रखते,
तो बड़ा फर्क पड़ जाता था। अब क्या हो रहा है, इट हैज टेकन अ पेंडेमिक ऑफ दिस स्केल टू पुट अ एवरीथिंग। सारी इंडस्ट्रीज रुक गई, ट्रेन रुक गई, एयर ट्रैफिक रुक गया, कुछ बंद हो गया। तो अब जो एक आदमी का लेवल है वो गरीबी और रईसी में नहीं है, वो सब अब एक लेवल पर है। तो अगर आपको एक पेंडेमिक ये बात सिखा सकता है और अगर आप ये समझ सकते हैं, and if it changed you, then it has been a challenging year. मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए, मैं चैलेंजिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ही खराब साल रहा है। खराब साल रहा है मतलब क्या, तो इतने साल अगर आप ठीक रहे हैं और आप सेल्फिश रहे हैं तो वो ठीक है। तो मदर अर्थ के लिए वो इतने साल, अगर 30 साल आपने व्यतीत करे हैं जीवन में, तो वो तो 30 साल मदर अर्थ सफर करती रही। तो अब अगर वो रिटेलिएट कर रही है और अगर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और अगर पेंडेमिक हो रहा है या स्टॉर्म्स आ रहे हैं या साइक्लोन आ रहे हैं, इसका एक रीजन है, you know. So I feel that yes, I pray to God and I pray to the universe that things come back together and we all, but when it comes back, we should value what we went through. We should not forget that this changed us. क्योंकि हम अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो ह्यूमन मेमोरी बहुत छोटी होती है, तो अपने अपने कामों में निकल जाएंगे, 5 साल बाद वो यही बात हो जाएगी, हाँ यार एक चीज हुई थी 2020 में, बट उससे हमें सीखना चाहिए। वी शुड मूव फॉरवर्ड, एम्पैथी लानी चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कंपटीशन और ट्राइंग टू आउटडू वन अनदर, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन अनदर। जैसे अगर आप भी इस जीवन में आए हो, आप किसी के, आपकी भी माता पिता है, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, तो किसी और के भी वो है, कोई और भी किसी का बेटा है या बेटी है या उसके भी भाई बहन है, उसके भी स्पाउस हैं, उसके भी बच्चे हैं। सो वैल्यू दैट। इंसान बुरा नहीं होता। हम इतने इस रैट रेस में रह के इतने करप्ट हो चुके हैं कि हम जो सीधी सादी जिंदगी है जिससे हमें खुशी मिलती थी, हम भूल गए। आई फील अब हम अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर किसी के बच्चे हैं अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हम कोई अलग चीज नहीं कर रहे। वी शुड नॉट बी लाइक अरे हम कुछ अलग चीज कर रहे हैं, नहीं, यही तो करना सिखाया था हमें और हम यही भूले बैठे हैं कि मैं क्या गेन कर सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मुझे देखो मेरी अगली पिक्चर कौन सी है, मुझे देखो मेरा अगला आर्टिकल कौन सा है, मैं फ्रंट पेज पे आया नहीं आया। नो, वी वर नॉट मेंट फॉर दिस। People have forgotten, even in our acting profession, our industry, people have forgotten why they are here. Why did you come here to be an actor, or did you come here to be a person who wants to be famous? Do you like the performance part of it? Are you passionate about performing, or are you passionate about कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, मुझे एडिलेशन कितनी मिलेगी, मुझे Instagram followers कितने बढ़ेंगे, मुझे endorsements कितनी मिलेंगी? ये सब बाय प्रोडक्ट है। आपका पहला काम है आपका ठीक रखना, जो है कि आप अपनी ऑनेस्टली आप अपना काम करें। उस काम की वजह से फिर आगे आपको लोग पसंद आएंगे, और वो आप भी तभी पसंद आओगे जब आप अच्छे इंसान रहोगे। हमारी इंडस्ट्री में अगर आप अच्छे इंसान हो और अगर आपके पास सिर्फ 20% टैलेंट है ना, लोग आपके साथ काम करेंगे, बिकॉज पीपल वांट टू वर्क विद गुड पीपल। तो आई फील दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। अंगद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जल्दी सामने मिले और ये सब खत्म हो जाए और वापस नॉर्मल लाइफ आ जाए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। You too, and look after yourself. I hope your family is safe, you are safe, and spend maximum time with them, because this is the time. Yeah, we are doing it. Yeah. Thank you so much. Take care. Yeah. Bye bye. Bye.